Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 6 Lawley Road of our English literature book as semester. Students, in our last video, our topics were, our first number topic was summary of 5 to 9 number stanzas, and students, our second number topic was word meaning. So students, included these topics, we have read and explained summary of 5 to 9 number stanzas, which is page number 60 and 61 of the chapter 6 Lawley Road. And students, we have also read a note on 12 word meanings of the chapter 6 Lawley Road in our file English literature notebook in our last video. And students, today we are going to continue this chapter 6 Lawley Road, and today's our topic is summary of 10 to 12 number stanzas. So students, including this topic, today we will read and explain summary of 10 to 12 number stanzas, which is page number 61 of this chapter 6 Lawley Road. And students, we will also read about the author of this chapter 6 Lawley Road in our today's class. Okay, so all students, please pass our attention class and listen to my words clearly, because today we are going to read and explain summary of 10 to 12 number stanzas, which is page number 61 of the chapter 6 Lawley Road. And after it, students, we will also read about the author of this chapter 6 Lawley Road. Okay, so all students, look at this page number 61. Let's see 10 number stanza of this chapter 6 Lawley Road. Okay, stanza 10 number stanza of this chapter 6 Lawley Road is: transporting was a nightmare. It took me 3 days to reach the house with my booty. It was stretched out on the specially designed carriage drawn by several bullocks. The confusion brought about by my passage along Market Road, the incensed shouting and instructions I had to be giving the blinding heat of the day, Sir F.S. carriage coming to a halt at every inconvenient spot and angle, moving neither forwards nor backwards. All this was a nightmare I was to pass over. Okay, since transporting was a nightmare. Okay, it's mean कि परिवहन एक बुरा सपना था. Okay, it took me 3 days to reach the house with my booty. Okay, students, here the meaning of booty, that valuable things that a person wins, buys or achieves. Okay, बोल सकते हैं कि मूल्यवान चीज़ें जो एक व्यक्ति जीतता है, खरीदता है या प्राप्त करता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैचू ऑफ सर फ्रेडरिक लॉली. ओके, सर फ्रेडरिक लॉली के स्टैचू के बारे में बात कर रहे हैं. तो इट्स मीन कि मुझे उस सर फ्रेडरिक लॉली के स्टैचू को को घर पहुंचाने में 3 दिन लग गए. ओके, तो यहाँ पे सर फ्रेडरिक लॉली के स्टैचू को बहुत ही वैल्यूबल थिंग बोला गया है. तो मुझे अपनी उस वैल्यूबल थिंग को, बहुत ही ज़्यादा कीमती मूल्यवान चीज़ को, ओके, जो सर फ्रेडरिक लॉली का जो स्टैचू था, उसे घर पहुँचाने में 3 दिन लग गए. इट वॉज स्ट्रेच्ड आउट ऑन ए स्पेशली डिजाइंड कैरेज ड्रॉन बाई सेवरल बुलॉक्स. ओके, सेवरल मीन्स मैनी, कई, बुलॉक्स मीन्स बैलो. ओके, तो स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि यह कई बैलों द्वारा खींची गई विशेष रूप से डिजाइन की गई गाड़ी पर फैला हुआ था. ओके, तो ये स्टैचू था, तो ये कई बैलों द्वारा खींची जाने वाली विशेष रूप से डिजाइन की गई गाड़ी पर रखा हुआ था, फैला हुआ था. ओके, द कंफ्यूजन ब्रॉट अबाउट बाय माई पैसेज अलोंग मार्केट रोड, द इंसेंस्ड. ओके, स्टूडेंट्स, हियर द मीनिंग ऑफ इंसेंस्ड, दैट गोइंग ऑन विदाउट स्टॉपिंग. ओके, स्टूडेंट, कि बिना रुके चलना, उसे बोलते हैं इंसेंस्ड. ओके, जब आप बिना ब्रेक लिए कंटिन्यू चलते हैं ना, उसे बोलते हैं इंसेंस्ड. ओके, तो स्टूडेंट्स, इट्स मीन कि incensed shouting means चिल्लाना, and means or instruction means निर्देश. Okay, I had to be giving the blinding heat of the day, Sir F.S. carriage coming to a halt at every convent spot and angle, moving neither forward, it means आगे की ओर, not backward, it means पीछे की ओर. All this was a nightmare, it means बुरा सपना. I was to pass over. Okay, I was to pass over, it means कि मैं इसे पार करना चाहता था. Okay, students, the summary of this line I confusion brought about that कि बाजार सड़क के साथ मेरे मार्ग से उत्पन्न भ्रम, लगातार चिल्लाहट और निर्देश जो मुझे दे रहे थे. ओके, दिन की भीषण गर्मी और सर एफ की गाड़ी हर असुविधाजनक स्थान और कोड, ओके, एंगल मीन्स कोड पर रुकती है, ना तो आगे बढ़ती है और ना ही पीछे की ओर. ओके, ये सब एक बुरा सपना था, एक नाइटमेयर था. ओके, आई वॉज टू पास ओवर, इट्स मीन कि जिसे मैं पार करना चाहता था. ओके, तो एक नाइटमेयर की तरह लग रहा था. आई माउंटेड गार्ड ओवर हिम ऑन दी रोड साइड एट नाइट. ओके, इट्स मीन कि मैंने रात को एक किनारे पहरा बिठाया. ओके, एंड एज ही ले ऑन हिज बैक स्टारिंग एट द स्टार्स, आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम. ओके, स्टूडेंट, सॉरी मीन्स होता है खेद या दुख. ओके, तो क्या होता है कि तो मैंने रात को किनारे पहरा बिठाया और जैसे ही वह सितारों से शुरू होकर अपनी पीठ के बल लेट गया. ओके, जो स्टैचू था उसे जब उन्होंने ज़मीन पर लेटाया तो मुझे उसके लिए खेद हुआ, दुख हुआ. ओके, तो उन्होंने क्या किया, जो स्टैचू को ज़मीन पर लेटाया तो उसके लिए इन्हें खेद हुआ, दुख हुआ. सॉरी मीन्स होता है खेद या दुख. ओके,
फेल्ट मीन्स अनुभव किया. ओके, एंड लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंडा. इन ड्यू course he was safely lodged in my small house. His hat and soldiers were in my front hall, and the rest of him scratched out into the street through the doorway. Okay, the sense in due course. Okay, it means कि समय के साथ. Okay, he was safely lodged in my small house. Okay, तो वह मेरे छोटे से घर में सुरक्षित रूप से बंद हो गए. Okay, तो वो जो स्टैचू तो बहुत बड़ा था, और जो इनका होम है तो बहुत छोटा सा था, तो स्टैचू जो था वो छोटे से घर में सुरक्षित रूप से रख गया, बंद हो गया. ओके, हिज हैड एंड सोल्जर. ओके, तो उसके जो वो जो स्टैचू था ना, उसका जो हैड था और सोल्जर थे, सिर था, और उसके जो कंधे थे. ओके, इन माई फ्रंट हॉल. ओके, तो वो सामने वाले मेरे सामने के हॉल में थे. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ हिम स्क्रैच्ड. ओके, और उनका जो बाकी हिस्सा था ना, तो आउट इनटू द स्ट्रीट थ्रू द डोरवे. ओके, तो उनका बाकी हिस्सा द्वार के माध्यम से गली में फैला हुआ था. ओके, तो समय के साथ वह मेरे छोटे से घर में सुरक्षित रूप से बंद हो गए. ओके, उनका सिर और कंधे मेरे सामने के हॉल में थे, और उनका जो बाकी हिस्सा था, बाकी बॉडी का पार्ट था उस स्टैचू का, वो द्वार के माध्यम से गली में फैला हुआ था. ओके, फ्रेंड्स, लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंडा. The municipal council passed a resolution thanking me for my services. Okay, for my services, I wired the news about the statue to my paper. A week later, the chairman came to my house in a state of agitation. I seated him on the chest of the tyrant. He said, "I have bad news for you. I wish you had not sent up that news item about the statue. See, these he held out a safe of telegrams. So they were from every kind of historical society in India, all protesting against the removal of the statue. We had all been misled about this Frederick Lawley of the statue was a military governor who had settled down here after the immunity. He almost built the town of Malgudi. He established here the first cooperative society for the whole of India, and the first canal system by which thousands of acres of land were irrigated from the Shariu. He established this. He established that, and he died in the great Shariu floods while attempting to save the lives of villagers living on its banks. In one of his dispatches, he was said to have declared Britain must quit India someday for her own good. Okay, since let's see summary of this stanza. The municipal council passed a resolution thanking me for my services. Okay, it's mean कि जो म्यूनिसिपल जो काउंसिल थे. ओके, इट्स मीन कि नगर पालिका जो काउंसिल थी. ओके, तो नगर परिषद ने मेरी इस सेवाओं के लिए मुझे धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. ओके, एंड आई वार्ड द न्यूज़ अबाउट द स्टैचू टू माय पेपर. ओके, और मैंने प्रतिमा के बारे में समाचार को अपने अखबार में मतलब प्रकाशित कर दिया. ओके, उसे वाइड कर दिया. ओके, एंड अ वीक लेटर. ओके, तो एक हफ्ते बाद द चेयरमैन केम टू माय हाउस इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन. ओके, एजिटेशन इट्स मीन की है द मीनिंग ऑफ एजिटेशन दैट हंगामे की स्थिति. ओके, तो एक हफ्ते बाद सभापति मेरे घर पर हंगामे की स्थिति में आए. ओके, बहुत ही गुस्से में आए. ओके, आई सीटेड हिम ऑन द चेस्ट ऑफ द टैरेंट. ओके, तो मैंने उन्हें उस टैरेंट मीन्स अत्याचारी. ओके, मैंने उन्हें अत्याचारी के चेस्ट पे बैठाया, छाती पर बैठाया. एंड ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव बैड न्यूज़ फॉर यू. ओके, इट्स मीन कि उन्होंने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है. ओके, एंड I wish you had not sent up that news item about the statue. Okay, और उन्होंने कहा कि काश आपने मूर्ति के बारे में वह समाचार नहीं भेजा होता. ओके, एंड सी दिस, इट्स मीन कि ये देखिए, ही हेल्ड आउट अ सीफ ऑफ टेलीग्राम्स. ओके, उन्होंने क्या किया कि टेलीग्राम की एक गड्ढी निकाली. ओके, स्टैंड सेड द मीनिंग ऑफ अ सीफ ऑफ टेलीग्राम. इट्स मीन कि टेलीग्राम्स की एक गड्ढी, बहुत सारे टेलीग्राम्स होते हैं. ओके, उन्हें तो दे वर फ्रॉम every kind of historical society in India, all protesting against the removal of the statue. Okay, तो इट्स मीन कि वे भारत में हर तरह के ऐतिहासिक समाज से थे, सभी मूर्ति को हटाने का विरोध कर रहे थे. ओके, स्टैचू मीन्स मूर्ति या प्रतिमा. ओके, एंड रिमूवल मीन्स हटाना.
and we had all been misled about Sir of this Frederick Lawley of this statue was a military governor who had settled down here after the immunity. Okay, it's mean कि हम सभी को सर एफ के बारे में गुमराह किया गया था. ओके, ये जो फ्रेडरिक लॉली है, प्रतिमा की बात कर रहे हैं. ओके, तो ये एक सैनिक गवर्नर थे. ओके, एक सैनिक गवर्नर थे और जो यहाँ इम्यूनिटी के बाद बस गए थे. ओके, इम्यूनिटी के बाद यहाँ रहने लगे थे. ही ऑलमोस्ट बिल्ट द टाउन ऑफ मालगुडी. ओके, उन्होंने लगभग मालगुडी शहर का निर्माण किया था. ही established here the first cooperative society for the whole of India and the first canal system by which thousands of acres of land were irrigated from the Saryu. He established that, and he died in the Great Saryu floods while attempting to save the lives of the villagers living on its bank. Okay, it's mean कि समिति की स्थापना की इन्होंने. ओके, तो उन्होंने यहाँ पूरे भारत के लिए पहली सहकारी समिति की स्थापना की और उन्होंने पहली जो नहर प्रणाली. ओके, जो पहली नहर प्रणाली इनके द्वारा सरयू से हजारों एकड़ भूमि सिंचित की गई. ओके, सिंचाई की गई उसकी, और इन्होंने इसे स्थापित किया और इसके किनारे रहने वाले ग्रामीणों के जीवन को बचाने का प्रयास किया. ओके, और प्रयास करते हुए जब ये प्रयास कर रहे थे ग्रामीणों के जीवन को बचाने के लिए, ओके, तो महान सरयू बाढ़ में इनकी मौत हो गई थी. ओके, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अपोजिट हुआ. बहुत ही सर जो फ्रेडरिक लॉली थे इनके बारे में बहुत गलत सोचा जा रहा था. मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो गई थी. ओके, और इनके बारे में सोचा जाती है कि बहुत ही टैलेंट है. इट्स मीन टैलेंट मीन्स इसमें बहुत अत्याचारी हैं. ओके, और जो हमारे इंसाइंट थे, हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने कैसे बियर किया होगा, कैसे सहन किया होगा इनके अत्याचारों को, ये सोचा जा रहा था. इसलिए उनकी जो स्टैचू था, मूर्ति थी, उसे वहाँ से हटा दिया जा रहा था, है ना. और उनके मतलब लोगों के दिल में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बैड फीलिंग थी, बहुत बुरा मानने थे. लेकिन जब उनकी सच्चाई पता चली उन टेलीग्राम से कि तो बहुत अच्छे थे. ओके, इन्होंने तो ग्रामीणों के जीवन को बचाने के प्रयास के चलते महान सरयू बाढ़ में अपनी जान तक गंवा दी. ओके, मतलब लोगों को बचाने के लिए सरयू बाढ़ से उनकी मौत हो गई थी. ओके, तो इन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए किया, तो लोगों को काफ़ी मतलब बैड फील हुआ होगा अपनी मिस्टेक पर, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी. ओके, एंड he established this. Okay, he established that, and he died in the great he established. तो फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब ये इन्होंने अपनी महान सरयू बाढ़ में उनकी मौत हो गई, इनकी मृत्यु हो गई. ओके, लोगों को बचाने के लिए, तो he established that, and he died in the great Saryu floods. Flood means स्टूडेंट्स होते बाढ़. ओके, while attempting to save the lives of villagers living on its bank. ओके, जब ये लोगों को बचा रहे थे सरयू की बाढ़ से, तब इनकी मौत हो गई थी. In one of his dispatches he was said to have declared, okay, Britain must guide in India someday for her own good. Okay, स्टूडेंट्स had the meaning of declare that घोषणा की. ओके, तो स्टूडेंट्स इन्होंने एक पेशर में उनके बारे में कहा गया था कि इन्होंने घोषणा की थी. ओके, कि ब्रिटेन को किसी दिन अपने भले के लिए भारत छोड़ देना चाहिए. ओके, तो ये मानते थे कि हाँ, ब्रिटेन को भारत छोड़ देना चाहिए अपने भले के लिए. ओके, एंड लेट्स सी नेक्स्ट. द चेयरमैन सैड द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अस टू reinstate द स्टैचू. ओके, एंड स्टूडेंट्स द चेयरमैन से, तो इट्स मीन कि अध्यक्ष ने कहा. सैड इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ से मींस कहना. सैड मींस कहा. द गवर्नमेंट, ओके, हैज़ ऑर्डर. इट्स मीन कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया. तो अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हमें आदेश दिया है. ओके, हमें आदेश दिया है reinstate. स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ reinstate, दैट पुनः स्थापित करना. ओके, reinstate मीन्स पुनः स्थापित करना. ओके, द स्टैचू मीन्स प्रतिमा या मूर्ति. ओके, द चेयरमैन सैड द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड अस टू reinstate द स्टैचू. इट्स मीन कि अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हमें प्रतिमा को पुनः स्थापित करने का आदेश दिया है. ओके, तो चेयरमैन ने कहा कि मतलब गवर्नमेंट ने हमें ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया कि स्टैचू को, जो सर फ्रेडरिक लॉली का जो स्टैचू हमने यहाँ से हटाया है, उसे फिर से उसी स्थान पे हम स्थापित करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी सर फ्रेडरिक लॉली के बारे में. ओके, इसलिए उनके स्टैचू को वहाँ से हटा दिया गया. ओके, थे वो मतलब ब्रिटेन के ही, लेकिन वो मतलब एक अच्छे पर्सन थे. उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया था. सरयू बाढ़ में लोगों की जान बचाई थी. ओके, और लगभग मालगुडी शहर का निर्माण किया था. तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि इनके स्टैचू को फिर से उसी स्थान पे लगाया जाए जहाँ से इन्हें उसे हटाया गया. ओके, सो स्टूडेंट्स द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी लॉली रोड इज आर.के. नारायण. ओके, तो आर.के. नारायण जी इस स्टोरी, ये जो स्टोरी है लॉली रोड, इसके लेखक है. ओके, स्टूडेंट्स टर्न पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट दिस पेज नंबर 62. लेट्स रीड अबाउट द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी लॉली रोड. ओके, स्टूडेंट्स अबाउट द ऑथर, इट्स मीन लेखक के बारे में. आर.के. नारायण 1906 to 2001 was a famous Indian author. ओके, तो स्टूडेंट्स
आर के नारायण जी 1906 से 2001 तक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे. ओके, ही अलॉन्ग विद मुल्क राज आनंद एंड राजा राव वाज अमंग द फाउंडिंग फादर्स ऑफ फिक्शन इन इंग्लिश इन इंडिया. ओके, इट्स मीन कि वह मुल्क राजा आनंद और राजा राव के साथ भारत में अंग्रेजी में कथा साहित्य के संस्थापकों में से एक थे. ओके, एंड ही सेट मोस्ट ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स इन अ फिक्शनल साउथ इंडियन विलेज कॉल्ड मालगुड़ी. ओके, तो उन्होंने अपनी अधिकांश लघु कथाएं और उपन्यास, ओके, तो उन्होंने अपनी बहुत अधिकांश लघु कथा और उपन्यास मालगुड़ी नामक दक्षिण भारतीय गांव में स्थापित किए. ओके, सेट में स्थापित किए. ओके, नारायण रोट हिज फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स इन द ईयर 1930. ओके, तो नारायण ने अपना पहला जो उनका उपन्यास था, ओके, नॉवेल मीन्स उपन्यास, तो नारायण ने अपना पहला उपन्यास स्वामी और फ्रेंड्स, ओके, 1930 में, ओके, 1930 में लिखा था. ओके, एंड इट वाज फाइनली पब्लिश्ड इन 1935 और ये अंततः ये 1935 में प्रकाशित हुआ. ओके, इट वाज फॉलोड बाय many memorable works including, okay, the Bachelor of Arts 1937 and the English Teacher 1945 and the Guide 1958. okay, तो it's mean कि इनके जो इन्होंने जो प्रकाशित की थी, इनकी जो फर्स्ट नावल था, ओके, जो फर्स्ट नावल इन्होंने जो प्रकाशित किया, ओके, स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसके बाद में क्या होता है कि जो लास्ट में अंततः प्रकाशित हुआ था 1935 में, इसके बाद इट वाज फॉलोड बाय मैनी मेमोरेबल वर्क. ओके, इनके बहुत सारी मेमोरेबल वर्क से बहुत सारी यादगार काम है. तो इट्स मीन कि इसके बाद कला स्नातक, ओके, 1937, द इंग्लिश टीचर 1945 और गाइड 1958. ओके, 1958 सहित कई यादगार कार्य किए इन्होंने. एंड द गाइड फिट्स हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960. ओके, और गाइड ने इन्हें 1960 में, ओके, 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया. ओके, तो गाइड की वजह से इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था. ओके, so students, we have also read about the author of this chapter 6 Lawley Road in our today's class, and students, I hope you must have understood about the author of this chapter 6 Lawley Road. And finally, we have finished this chapter 6 Lawley Road in our today's class, and I hope you must have understood this chapter 6 Lawley Road. You are enjoying this chapter 6 Lawley Road, and you have no problem in any stanza of this chapter 6 Lawley Road. Okay, so students, today's classwork is that write down a short summary of this chapter 6 Lawley Road in your own words in your fair English literature notebook with your best handwriting. It's today's classwork. And students, the homework is that learn word meanings of this chapter 6 Lawley Road from your fair English literature notebook. And students, I hope you have no problem for learning word, because since I have explained all word meaning of this chapter 6 Lawley Road in our last video. Okay, so all students, firstly complete your class work. Write down a short summary of this chapter 6 Lawley Road in your own words in your fair English literature notebook with your best handwriting, and send me your work here. Thank you.